ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ನಾವು ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ನಾವು ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಅಶ್ವಿನಿಯರ ಕಾರುಣ್ಯವು. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಅಶ್ವಿನಿಯರ ಕಾರುಣ್ಯವು. ದೇವೇಂದ್ರನ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ದೇವೇಂದ್ರನ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನಾವು ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ. ನಾವು ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ. ಜೀವರಾಶಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಿಡಿತ. ಜೀವರಾಶಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಿಡಿತ. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ರಾಗಮೋಹ ರುಜಿನಗಳ ಅಂಕೆ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿ. ರಾಗಮೋಹ ರುಜಿನಗಳ ಅಂಕೆ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿ. ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ತನುಮನಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ತನುಮನಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ತನುಮನಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ತನುಮನಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ಆರ್ಷ ನೀತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಒಳಗೂಡುತ್ತ. ಆರ್ಷ ನೀತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಒಳಗೂಡುತ್ತ. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಣತೆಯಾಗಲಿ. ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಣತೆಯಾಗಲಿ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಣತೆಯಾಗಲಿ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಣತೆಯಾಗಲಿ. ಪರಮಾದರ ವಿನಯದಿಂದ ಗುರು ವೈದ್ಯನ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತ. ಪರಮಾದರ ವಿನಯದಿಂದ ಗುರು ವೈದ್ಯನ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತ. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಬಂದೆವಿಂದು. ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಬಂದೆವಿಂದು. ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ನಾವು ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ನಾವು ಪರಂಪರೆಯ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಾದೆವು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವಂತ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವಂತ. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು. ಮುನ್ನಡೆವೆವು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆವೆವು.
ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಯ್ತು. ಒಂದಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸರ್, ದೇವ ಬಿವೈದ್ಯಪಿ ಪೂಜಿತ ಗೀತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರು? ಪೂಜಿತ ಗೀತ. ಪೂಜಿತ ಗೀತ ಯಾವುದದು? ಪೋಷಿತ ಪಕ್ಷಿ ಪೂಜಿತ ಗೀತ. ಹೌದಾ? स्टार्ट। देव भी वैद्य भी एक रूप है, देव भी वैद्य भी एक रूप है, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं। देव भी वैद्य भी एक रूप है, देव भी वैद्य भी एक रूप है, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं। करुणा के प्रतिरूप का साकार तू है, करुणा के प्रतिरूप का साकार तू है, माता पिता बंधुजन सब तू ही तो है, माता पिता बंधुजन सब तू ही तो है, रुग्ण बंधु उपचार को कुशलोपरिका, रुग्ण बंधु उपचार को कुशलोपरिका, सामगान गीत का श्रुति धारक है, सामगान गीत का श्रुति धारक है, तू श्रुति धारक है, तू श्रुति धारक है। देव भी वैद्य भी एक रूप है, देव भी वैद्य भी एक रूप है, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं। उपचार का है चार चार पाइया, उपचार का है चार चार पाइया, वैद्य रोगी परिचारक और औषधियाँ, वैद्य रोगी परिचारक और औषधियाँ, उच्च नीच भेद भूल के सेवा के, उच्च नीच भेद भूल के सेवा के, कायक में निरत तू अधिनायक है, कायक में निरत तू अधिनायक है, तू अधिनायक है, तू अधिनायक है। देव भी वैद्य भी एक रूप है, देव भी वैद्य भी एक रूप है, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं। ज्योति से हर तरफ प्रकाश हो जैसा, ज्योति से हर तरफ प्रकाश हो जैसा, बीज से फल उगाते हैं हम वैसा, बीज से फल उगाते हैं हम वैसा, लोक को वेद ज्ञान की आशा का, लोक को वेद ज्ञान की आशा का, सहारा है तू आज ज्ञान दाता भी है, सहारा है तू आज ज्ञान दाता भी है, ज्ञान दाता भी है, ज्ञान दाता भी है। देव भी वैद्य भी एक रूप है, देव भी वैद्य भी एक रूप है, राग रोग को मिटा के अभय देते हैं, 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 राग रोग को मिटा के अभय देते हैं। और ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ
So right away, let us start with today's Prabhashanam session. Are you all ready? Okay. So today, what are we going to deal with? Kalpana Sadhanam will be in the afternoon. Now it is Prabhashanam, and Prabhashanam on Dosha Prakriti. Prakriti Prakaranam will start, right? You have all finished reading that in Abhyas Sadhanam? Okay. So over to Dr. Pallavi Hegde for Prabhashanam. Good morning everybody. Shri Gurubhyo Namaha. आज हम सुश्रुत शारीर के 64th श्लोका से 80th श्लोका तक प्रभाषणम का अप्लाइड एस्पेक्ट में हम डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन करने के पहले मैं एक कहानी बोलूँगी. एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, ठीक है. उसको शादी का उम्र आ गया. सोचा कि चोरी करते रहा तो और दिन ऐसे ही रुका तो मेरा शादी का उम्र भी पार हो जाएगा चोरी करते करते. तो ठीक है, शादी करना है. तो सोचा कि किससे शादी करना है. तो लड़की से तो ही करना है, मगर वो लड़की कैसी रहना है, वो भी बड़ी चोर रहना चाहिए. और वो मैं बड़ा चोर हूँ तो वो भी एक बड़ी चोर ऐसा रहना चाहिए करके सोचा. तो बहुत ढूंढने के बाद एक चोर मिल गई, जैसे धूम 2 में है ना, हाँ धूम 2 फर्स्ट, हाँ 2 में, हाँ. तो ढूंढा तो वो भी बड़ी चोर निकली. तो ठीक है, इससे ही शादी करना है करके डिसीजन लेके शादी हो गया. ये भी चोर है, वो भी चोर है, तो ठीक है. तो वो लोग आगे क्या सोचेंगे, अच्छा बच्चा चाहिए तो वो भी बड़ा चोर रहना चाहिए करके सोचे. तो ठीक है, चोर इतना बड़ा चोर बच्चा रहना था तो वो लोग 24 आवर्स वही सोचते थे. तो बच्चा पैदा भी हो गया. और प्रॉब्लम क्या हुआ, सब ठीक था. उसका 1 साल हुआ तो भी उसका एक हाथ ऐसे ही रहता था, खुलता ही नहीं है. अरे एक बार भी नहीं खुला. लोगों का दिमाग खराब हो गया. सब ठीक है, सब सही चल रहा है, मगर ये ऐसा क्यों है, सिर्फ ऐसे ही रहता है, हाथ इतना मुड़ गया है. तो बहुत सारा जैसे आजकल लोग करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, सब जगह घूमे. तो आगे आके एक आयुर्वेद वैद्य के पास आ गया. तो वो ज्ञानी थे, समझते थे. तो सब कहानी सुना, क्या है, आप क्या करते हैं, पूरा हिस्ट्री लिए, दिनचर्या लिए. तो मालूम पड़ा कि ये दोनों बहुत बड़े चोर हैं. तो ठीक है. तो उसके बाद सब सोचा, तो डिलीवरी किधर हुआ. हाँ, डिलीवरी वो हॉस्पिटल में हुआ और एक नर्स करवाई, तब डॉक्टर नहीं थे. अच्छा नर्स करवाई, अच्छा उस वक्त क्या क्या हुआ था पूछे. तो डॉक्टर पूछने के बाद वो लोग याद करके, 1 साल के पहले का बात है ना, तो याद करके बोले कि कुछ खास नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है. नहीं ऐसा कुछ हुआ था क्या. तो आपके याद में रहा हुआ इंसिडेंसेस, हाँ एक बात हुआ था, डिलीवरी होने की इमीडिएटली बच्चा हमारे हाथ में है ना, तो नर्स चिल्लाने लगी थी कि मेरा उंगली का ये जो रिंग रहता है ना वो नहीं है करके, गायब हुआ है करके वो बोल रही थी. तो ठीक है, डॉक्टर को समझ में आ गया क्या हुआ है करके. तो वो अपने अटेंडर से बोला कि देखो एक बड़ा डायमंड का नेकलेस लेके आओ. तो ठीक है, लेके आए और देखते रहो करके बोले, और उसके पास हाथ के पास रख दिए. तो वो डायमंड के नेकलेस देखते ही वो ये हाथ को ऐसा छोड़ा और वो पकड़ लिया. हाथ में क्या था, उंगली का अंगूठी था. तो बोलने का इतना है कि नेक्स्ट स्लाइड, अंकु नेक्स्ट. ये जो हर एक इंसान का एक अपनीपन रहता है ना, मतलब अपनापन क्या बोलते हैं, खुद का एक आइडेंटिटी,
वही प्रकृति है। तो ये हर एक इंसान का इंट्रिंसिक नेचर है, बाय बर्थ आने वाला स्वभाव है। ये कुछ भी करो, किधर भी जाओ, वो बदलता नहीं है, मतलब वो ऐसे ही रहता है, व्यक्त होता है। एक 2 मिनट के लिए हम ड्रामा कर सकते हैं, मगर कुछ भी करो वो अपनापन रहता ही है। तो ऐसे जो प्रकृति है वो 3 एंगल में डिवीजन लिए हैं। वो फर्स्ट क्या है? दोष प्रकृति, दोषों से बना हुआ प्रकृति। आपको मालूम है वात पित्त कफ से जो बनता है, जो 7 प्रकृति है वो। और दूसरा भी है केचिद मता है, मतलब कई लोग जो हमारे बीच में है वो भी ऐसे ज्ञानी लोग समझते हैं कि और एक 5 तरीके का प्रकृति होता है, वो भौतिकी प्रकृति बोलते हैं। वो क्या है? हाँ, वायव्याः आप्यः तेजसः नाभसः पार्थिवाः, ये सब 5 महाभूतों से भी प्रकृति का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वो एंगल पे। तीसरी तरीका और है, ये महाप्रकृति है, ये काय का प्रकृति है, कायानाम प्रकृति। इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे, मगर आज हम दोष प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो दोष प्रकृति आपको मालूम है 7 ही डिवीजन है। आपको एक डाउट आया रहेगा, इधर जितने भी लोग हैं सब अलग अलग है, एक चीज भी मिलता जुलता नहीं है। तो सिर्फ 7 डिवीजन किए हैं तो हमारा किधर आएगा, तो डाउट आएगा। मतलब इतना है कि 7 ग्रुप्स है ये, आप कितने भी तरीका रहने दो, कुछ भी हो, मगर ये 7 के अंडर ही, डिवीजन के अंडर ही आएगा। मतलब ये पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 7 ग्रुप के अंडर आते हैं। ओके, आगे। ये तो मालूम है आप लोगों को, 1 दोष से 3, 2 दोषों का कॉम्बिनेशन से 3 और त्रिदोषों का कॉम्बिनेशन से 1 बनता है। तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ अलग अलग है, मगर मेन डिवीजन ये 7 है। तो आगे जाइए। अच्छा, पहला कहानी के जो जिस्ट है इधर आ गया। शुक्र शोणित संयोगे, ये कब बनता है प्रकृति? वो चोर क्यों बना, इतना बड़ा चोर? शुक्र शोणित संयोगे, ये संयोग है, ये पूरा एक वर्ड में एक विशिष्टता है। ये समस्त पद है, आपको मालूम है, कल अभ्यास साधन में हुआ है। कौन सा विभक्ति कारक में है ये? सप्तमी में, मतलब अधिष्ठान में, संयोगे, है ना। शुक्र और शोणित क्या है? द्रव्य है। बेसिकली सोचे तो ये द्रव्य है। ये 2 द्रव्यों का संयोग में, मतलब द्रव्यों का संयोग में खुद एक द्रव्य भी बन गया, वो संयोग इटसेल्फ एक द्रव्य हो गया। तो द्रव्य में पहली बात। दूसरी बात, संयोग क्या है? संयोग वियोग ये सब क्या है? कर्म है, एग्जैक्टली, कर्म। तो संयोग कर्म में, 2 द्रव्यों का संयोग कर्म में, ठीक है। तीसरी बात, आपको मालूम है कल कारक प्रकरण पढ़ते वक्त सती सप्तमी करके एक आया था, काल में, मतलब संयोग काल में। ये 3 एंगल में प्रकृति का उत्पत्ति होता है, तब ये बनता है। वो द्रव्य में, वो कर्म में और वो काल में। ओके, तेन प्रकृति ही जायते। आगे जाइए। तो क्या रहना चाहिए ये 3 इसमें, मतलब वो द्रव्य में दोष उत्कट रहना चाहिए। जो दोष का प्रबलता है उससे ही प्रकृति बनता है, वही व्यक्त होता है। तो ये कितने देर तक रह सकता है? अंटिल डेथ, मतलब मरने तक रहेगा, ये बदलता नहीं। मगर एक बात है, जब हम बढ़ते जाते हैं, हमारा वयस, एज बढ़ते जाता है, तो उस उम्र की हिसाब से हमारा प्रकृति का वो अंश व्यक्त होता है, मगर वो बदलाव नहीं है, ठीक है, बदलाव नहीं है, सिर्फ व्यक्तता है। 1 मिनट पीछे। तो एक्चुअली ये क्या है? दोष उत्कट बोल दिए आप, मानते हैं ये तो दोष प्रकोप से रोग होना चाहिए, विकृति होना चाहिए, है कि नहीं? मगर ये प्रकृति ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है, सांप में पूरा शरीर में विष तो रहता है, पॉइजन तो रहता है, मगर वो मरता नहीं, है कि नहीं?
सांप में पूरा शरीर, स्नेक में पूरा शरीर में विष रहता है, फिर भी वो मरता नहीं वो विष से, है कि नहीं? ऐसे ही विष जंतु जो है, जैसे कि एक डेड बॉडी है, एक वानर, मंकी, ठीक है, तो वो मर गया, नहीं तो दूसरा कुछ सांप ही पकड़िए तो सांप मर गया, तो उससे जो कीड़ा बनता है, जंतु बनता है, वर्म्स बनता है, वो भी विष से बना हुआ है, वो विष उसको कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही इधर एक उपमा दिए हैं, क्या है? विषजातो ही यथा कीटः न विषेण विपद्यते तथा प्रकृति ही। जो बाय बर्थ शुक्र शोणित संयोग में जो दोष उत्कट से जो प्रकृति उत्पत्ति होता है, वो विकार नहीं होता है, वो उस इंसान को, पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम या विकृति नहीं करेगा, ठीक है? आगे जाइए। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको? प्रैक्टिकल है, हमें कैसे समझना चाहिए कि ये प्रकृति को 3 एंगल है उसमें। हम ये डिवीजन हमें आसान हो जाएगा करके ये डिवीजन किए हैं और दिखता है जो लिस्ट है उधर, उसमें से फर्स्ट क्या है? बिहेवियर, और दूसरा अपीयरेंस, तीसरा आनु का, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज दिए हैं उधर, है कि नहीं? ये इस जैसा होता है, ये जो सिमिलैरिटीज बोल के जो बोलने वाला तरीका है ना, ये बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। तो ये 3 एंगल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे जाइए, देखिए वात प्रकृति का अपीयरेंस, पित्त प्रकृति का और कफ प्रकृति का एक लिस्ट बनाएंगे तो आप सबको मालूम है, अभ्यास साधन में हो चुका है, फिर भी लिस्ट करेंगे तो ऐसा होगा। वात प्रकृति वाले दिखने में कैसे रहेंगे? क्या उनके पास जाके हम थोड़ी देर रह सकते हैं? वो लोग मूडी रहते हैं। दुर्भगः दुखेन भज्यते, भज सेवायाम धातु से हुआ है, तो उन लोगों का इतना टेम्पर वेरी होता रहता है कि कभी कभी खुशी, कभी कभी दुख, कभी कभी इतना हंसी, पूरा वेरिएशन होता रहता है। जैसा वात चंचल है वैसे ही। तो ये दुर्भगः, तो कृशः दिखने में लीन रहते हैं, और स्फुटित कराचरणः मतलब ओके, धमनीततः ओके, प्रोमिनेंट रहता है, दिखता है, क्यों? कृश रहते हैं, मांस का उपचय नहीं है इसलिए। बाद में अल्प रूक्ष, अल्प श्मश्रु नख केश, अल्प नख, अल्प केश, अल्प श्मश्रु, ओके, रूक्ष केश, रूक्ष नख, रूक्ष श्मश्रु। तो ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो गया। अल्प प्रमाण कम है और रूक्षता गुण है, तो क्वालिटी हो गया। तो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज कम है इसमें, इन प्रकृतियों में। पित्त प्रकृति देखिए, ये लोग भी दुर्भग है, क्यों? इतना क्रोध आता है कि इन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि इनके पास नहीं रह सकते, तो सहन नहीं पाते, तो दुर्भगः, ठीक है? और दिखने में कैसे रहता है? हमेशा ऐसा रहता है, ऐसा है कि नहीं? तो दुर्भगः, अपीयरेंस ऐसा रहता है। और वली पलित कालित्य जुष्टः, कोई बोल सकता है इसका मीनिंग? पित्त का उष्णता के वजह से इतना जल्दी पाक होता जाता है कि त्वक में, केश में, है कि नहीं? तो जल्दी पक जाता है, तो जल्दी बूढ़े हो गए जैसे दिखते हैं, ठीक है? जुष्टः, अगर एक्चुअली हुए नहीं रहते, ऐसे दिखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और पीत शिथिलांगः, पीतांगः शिथिलांगः, येलोइश शेड रहता है, पीतता रहता है। और शैथिल्य, शैथिल्य मतलब कैसे समझे? ओके, कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसको? पकड़ के देखेंगे तो स्पर्शनगम्य भाव्य है। ओके, तो ताम्र नख, नयन, तालु, जीवहोष्ठ, पाणिपाद, तलम, ये सब कलर ताम्र वर्ण में रहता है। ताम्र किस वर्ण के लिए बोला गया है इधर? हाँ, तो रेडिश टिंज है ये। ओके, दुर्गंध, क्यों? हाँ, स्वेदन ज्यादा है,
ओके, तो कफ प्रकृति का क्या है? सुभगः, दिखने में अच्छे दिखते हैं और उनके पास जाके हम रह सकते हैं, सहन सकते हैं, हम सहन सकते हैं। तो प्रियदर्शनः, दिखने में अच्छे दिखते हैं। और शुक्लाक्षः, शुक्ल मंडल का जो कलर है वो व्यक्त रहता है, शुक्लाक्षः। आगे रक्तनेत्रांतः, रक्तता नेत्र के अंत में रहता है, मतलब अपांग संधि में वो रक्त वर्ण दिख पड़ता है, ठीक है। स्थिर कुटिल नील केशः, स्थिर केशः, नील केशः, कुटिल केशः। स्थिरत्व को कैसे जाने? केश में वो भी लंबा रहता है ना। ओके, कॉटन का धागा कैसा रहता है? ताम्र का, कॉपर का थ्रेड कैसा रहता है? डिफरेंस है कि नहीं? कुछ समझ में आया मैं क्या बोली? कॉटन का धागा, धागा जो है वो कैसा रहता है, और कॉपर का जो आपके केबल के वायर के अंदर सब रहता है वो छोटा छोटा, वो कैसा रहता है? हाँ, वो स्थिरत्व है, इसमें स्टिफनेस नहीं है, वो तनुत्व है, जैसे वात प्रकृति में रहता है, अल्प प्रमाण कम है। और कुटिल नील केशः, कुटिल, कुटिलता वक्रता, कर्ली रहता है। नीलः कृष्णः, नीलमेघ श्यामा, कृष्णः वर्ण के लिए बोला गया है। और सुविभक्त गात्रः, ये कैसे जाने? व्यायाम से क्या होता है? हाँ, व्यायामाद् उपजायते। तो विभक्तत्व किस से बोला जाता है? हाँ, और थोड़ा करेक्ट बोलिए, मतलब ओके, प्रोपोर्शनेट बाद में आप लोगों को मालूम है। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं वही चाहती थी। मतलब मांसपेशी और हर एक संधि, हर एक अंग अपना अपना प्रमाण में और शेप में जितना रहना चाहिए वो व्यक्तता से रहता है, ठीक है। ओके, और स्निग्ध छवि, छवि कांति, मतलब छवि, हाँ हाँ, आप लोगों को मालूम है, अभ्यास साधना में हुआ है। और थोड़ा आगे जाइए, सिंपल कीजिए, सब रिलेटेड है, आप जो बोल रहे हैं वो सब रिलेटेड है, मगर और थोड़ा इधर देखिए, स्निग्धता है, ये गुण है कि नहीं? तो छवि क्या हो गया? इसके लिए विशेषण के लिए यूज किए हैं। तो ये किधर रहना चाहिए? स्निग्धता स्किन में, करेक्ट। तो ये किधर रहेगा? कौन सा स्किन में ये सब व्यक्त होता है? हाँ, अब आ गया। तो अवभासिनी से स्निग्धत्व व्यक्त होता है, स्निग्ध कांति ही, ठीक है। मतलब त्वक में दिखने वाला क्वालिटेटिव लक्षण है, गुण है ये, ठीक है। और आगे दूर्वेन्दीवर निस्त्रिंशत् आर्द्रारिष्टक शरकांडानाम अन्यतम वर्णः, ये सब वर्ण के लिए रेंजेस दिए हैं। आर्द्रारिष्टक क्या है? अरिष्टक सोपनट, रीठा जो बोलते हैं ना। आर्द्र जब रहता है वो हनी के जैसा रहता है, थोड़ा बहुत हनी के जैसा कलर में रहता है। और दूर्वा आप लोग देखे हैं इसलिए उसमें डाला नहीं है, सब लोग जानते हैं। हाँ, दूर्वा का ग्रीन कलर रहता है, और कुछ शेड में रहता है वो, हाँ येलोइश शेड में भी रहता है, पांडुवर्ण है। और आगे इंदिवरा, हाँ नीलकमला, बाद में
निस्त्रिंशत क्या है? आयुध, मतलब तलवार। शार्प करके अगर तलवार को रखे तो कैसे चमकता है देखिए, वो सब शेड्स है। ठीक है, आगे जाइए। इसमें कौन सा भी एक शेड में रहता है उनका वर्ण। ठीक है, और आगे आगे। ठीक है, उनका मूवमेंट कैसा रहता है, चलते जाते हैं। तो अनवस्थित आत्मा चल दृष्टि ही, आंख कैसा रहता है, इधर उधर पटकता रहता है। ये वात प्रकृति का लक्षण है। और पित्त प्रकृति का सदा व्यथित आस्य गति ही, व्यथा दर्द पीड़ा। तो क्यों ऐसा होता है? आस्य मुख, गति ही चलना। ओके, या आस्य गति ही, उसको समस्त में लिया तो भाषण करना, मुंह खोल के बात करते हैं ना, आस्य गति ही, मुख गति ही। तो कैसा रहता है? बात करते वक्त अगर पित्त प्रकृति वाले बात करेंगे तो मुंह में अंदर कुछ हुआ है, पीड़ा है जैसा बात करते हैं। अगर उनका गति में कैसे थोड़ा दर्द है ऐसा चलते हैं। कुछ इमेजिन हो रहा है आपको? चल के दिखाना है। वात प्रकृति वाले कैसे चलते हैं? कोई एक कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है, उधर ही ये देखिए। पित्त प्रकृति वाला नहीं, आपको सबको मुख में व्रण हुआ है, मुंह अल्सर हुआ है, एक बार भी हुआ रहेगा ना? तो जब बात करते वक्त कैसे लगता है ना? थोड़ा बहुत मुश्किल दर्द रहता है ना, वही आस्य गति है। ठीक है, अगर वही चलने में आ गया तो जैसे कि अब आप लोग, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहता है? हाँ ऐसा, तो वो है। और निद्रा कैसा रहता है? वात प्रकृति वालों का निद्रा, हाँ, जागरूक। और दंत खादी, नींद में अगर बाजू वाले बैठे तो उनका पूरा रात भर उसका दांत का आवाज सुनना पड़ेगा, कट 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 करके। ठीक है, दंत खादी, अपना दांत को खाता है वो। आगे, अच्छा, नींद में स्वप्न दर्शनम कैसा रहता है? ड्रीम्स कैसा आता है? हाँ, क्योंकि वात प्रकृति वालों को चलने का तरीका ही ऐसा है ना, तो रात में वही देखेगा, क्योंकि पूर्व देहानुभूतान है कि नहीं। तो संभ्रमेण वियति, वियति मतलब क्या है? आकाश है। ठीक है, जैसा पक्षी उड़ता है ऐसा ही ये खुद उड़ रहा है करके ऐसा एक्सपीरियंस करता है वो। तो अगर पित्त प्रकृति है तो वो कैसा समझेगा, मतलब कैसे तरीके का ड्रीम्स आएगा? इधर दो ग्रुप्स है, देखिए, कनक पलाश कर्णिकारान संपश्येत और हुताश विद्युदुल्काः। ऊपर की जो है ये सब फूल है, कनक ओके, गोल्ड। और पलाश, हाँ वही। और कर्णिकार ओके। तो सब दिखने में कलर कैसा है? येलो या रेड। ओके, मगर सौम्य है। एक फूल है, एक स्वर्ण है, दूसरा आरगवत का फूल है। वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर कलर कैसा है? आंख के लिए ऐसा, हाँ, तेज रहता है। और द्रव्यतः हुताश विद्युदुल्काः कैसा रहता है? भयानक रहता है। तो ये दो ग्रुप्स है इसमें ड्रीम्स में। ठीक है, क्यों ऐसा दो ग्रुप्स बनाए हैं? पित्त प्रकृति वाले मृदु भी है कि नहीं? वो स्वभाव उनमें है, मृदुत्व उनमें है। तो और भयानक भी है, रौद्र भी है, उष्णता की वजह से, है कि नहीं? तो दो ग्रुप्स में दिख पड़ता है। और कफ प्रकृति वालों को कैसे दिख पड़ता है? केन जलेन फलति, उन लोगों को सब जलमय है। मनोज्ञान जलाशयान स्वप्ने संपश्येत, है कि नहीं? साथ में उनको हंस चाहिए, कमल चाहिए, पूरा सौम्य भाव चाहिए, तो ऐसा एंजॉय करते हैं। कफ प्रकृति वाले मस्त है ना, बिना टिकट बिना ट्रैवलिंग से वो लोग सब स्वप्न में सब देख पड़ते हैं। ओके, बात कैसा रहता है? ये सब देखिए अलग अलग एंगल में है, मगर
हर एक को हर एक अंश नहीं दिए हैं। जिस प्रकृति में जिस व्यक्त रहता है, जो पॉइंट व्यक्त रहता है उसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है। वात प्रकृतियों का क्लास चलता रहता है, मोबाइल में चैटिंग चलता रहता है, बाजू वालों से बात करते रहते हैं, प्रलापी नहीं रुक पाते, 1 मिनट भी मुंह बंद नहीं कर पाते, प्रलापी। लपनम भाषणम वचनम, ठीक है। और किंचिदेव विलपति अनिबद्धम, जो बात करते हैं ना, किंचित यत्किंचित, जो बोलते हैं ना उसके लिए बिना रिलेशन, जिस प्रकरण में हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, प्रकरण समन्वय नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, पित्त प्रकृतियों का कैसा रहता है? ऑफ कोर्स उनका बात है ना, हमेशा कुछ अंदर कुछ दर्द है, उनको ऐसा लगता है, ऐसे बात करते हैं। और विगृह्य वक्ता, ये बात को तोड़ने वाले हैं, मतलब जो आप बोलते हैं उसका अपोजिट रहता है उनका, ठीक है, विगृह्य वक्ता। और कफ प्रकृति वाले परिनिश्चित वाक्य पद, जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से कन्फर्मेटिवली बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं, संशय नहीं, परिनिश्चित वाक्य पद। और जो बोलते हैं ना बहुत कम रहता है और टू दी पॉइंट रहता है, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहता है, एक ही आंसर टिक करना है, ठीक है, ये या बी या ऑप्शन में जो है एक ही, तो ऐसा निश्चित वाक्य पद, ठीक है। और अच्छा, वो स्वर कैसा रहता है? जलद मृदंग व्याघ्र सिंहघोषः, व्याघ्र सिंहघोषः। तो क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा रहता है स्वर का? इको होता है, अगर एक बात कहे तो वो सब लोग एक बार अटेंशन से सुनना पड़ता है, मतलब अपने अंदर ही नहीं बोलते है, बाहर आता है। एक बात बोले तो आगे वाले पीछे वाले उनके आजू बाजू वाले एक बार अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ मृदंग घोषः, जलद घोषः, सिंह घोषः। आगे जाइए, ठीक है। इनका पसंद और नापसंद, आपको सब डाउट आ रहा है ना, ये सब लेके क्या करना है आगे? मज़ेदार चीज़ है, रुकिए, पहले जान लेंगे। तो वात प्रकृतियों को शीत द्वेषी है, नहीं हो पाता है, एसी फैन सब नहीं चलेगा, इमीडिएटली जाके बंद करवाएंगे, नहीं तो ये लोग चादर ओढ़ के सोएंगे। तो पित्त प्रकृतियों को उष्ण द्वेषी है। द्वेषी मतलब ये एक्सट्रीम है, ठीक है, एनिमिटी ऐसे ही नहीं आता है, ये फुल अपोज से आता है कि नहीं। तो शीत द्वेषी, उष्ण द्वेषी, और इनको खाना बहुत पसंद है, ये खाने वाले हैं, मतलब जितना वैरायटीज है उतना सब डाल के ऐसा ऐसा खाएंगे, तो ये बहुभुक है ये लोग। और कफ प्रकृति वाले अलोलुपहा, क्या बना है उसमें से इतना खा के तृप्त हो जाते हैं। और मधुर प्रिय, इनको स्वीट बहुत पसंद है। मधुरता दो चीज़ है, ये गुण भी है और द्रव्य भी है, मतलब रस भी है ना। मधुर रस प्रिय भी है, और जो सॉफ्ट है, जो मधुर है, ये भाव है कि नहीं? फ्रेंडशिप, स्वीट फ्रेंडशिप, या ये जो स्वीटनेस है वो सिर्फ आहार में नहीं, हमारे रिलेशनशिप में भी रहता है, हमारा इमोशंस में भी रहता है कि नहीं? तो ये मधुर प्रिय है। इनको क्रोध होना और गुस्सा करना ऐसा ये नहीं, शांत रीति से रहने वाले और अच्छा पेशा में, मतलब अच्छे तरीके से रहते हैं। तो इनके साथ अगर रहेंगे तो कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा, कड़वापन नहीं रहेगा इनके रिलेशनशिप में। तो मधुर प्रिय। आगे जाइए, ठीक है। मेंटल पर्सनालिटी आ गया, मतलब जो मानसिक रीति से इनका क्या क्या है। ये देखिए, इधर मानसिक का जो भी पॉइंट्स बोले हैं ये दोष से होता है कि नहीं? ये दोष से भी मनस के ऊपर क्यों जो जो प्रभाव है उसके बारे में बोला गया है। मतलब ये भी
ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखिए, बाद में काय आएगा तभी भी ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लगता है कि ये काय का है क्या प्रकृति का है क्या, डाउट आता है। मगर डिफरेंशिएशन किधर करना है, प्रकृति कुछ भी कीजिए बदलता नहीं है, स्वभाव है, मगर काय ऐसा नहीं है। आगे हम अभ्यास साधन में आप लोग पढ़ेंगे। चींग चयन है, अगर सपोर्टिव फैक्टर उसको मिल गया ना वो बढ़ लेता है और घट भी ले सकता है, काय बदल सकता है, इधर ऐसा नहीं। तो वो पॉइंट याद रखना है। और वात प्रकृति वाले क्या है, स्तेनः, चोरी करने वाले हैं। चोरी सब एंगल में हो सकता है, जैसे कि हमारे फील्ड में ही देखिए प्रिस्क्रिप्शन चोर करने वाले रहते हैं, है ना। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखो, क्या क्या दवाई लेके हैं, अच्छा ये सिम्टम के लिए ये दवाई, यस करो, नोट डाउन करो, हाँ अपना क्लिनिक में खुद लिखो, ये हो गया। ये चोरी जो स्तेन स्वभाव है ना, ये किधर भी हो सकता है। सिर्फ बैंक से लूट लो और उनका ये कर लो, बस में पिक पॉकेट करो, ये सब भी है। उसके साथ साथ ऐसे भी है कि नहीं। अभी हमें एक प्रेजेंटेशन बनाना है, दूसरा पीपीटी देखो वो लोग क्या किए, अच्छा एक स्लाइड लिख लो, ये भी चोरी है। मतलब बहुत कुछ एंगल है। चोरी क्या बोलते, वो अपनापन है ना, चोरीपन, तो कैसे भी कर सकते हैं। मतलब जो लोगों को मालूम है वो कैसे कैसे किस किस एंगल से कर सकते हैं। और दूसरा मत्सरी, वात प्रकृति वालों को जेलसी रहता है, सहन नहीं पाते। अगर वो बढ़ रहा है तो वो क्यों हुआ, नहीं, उसको टांग खींचने के लिए सोचते रहते हैं, अंदर से जलन होता है। तो ये स्वभाव मेंटली है। ये क्या है एक्चुअली, दशविध पाप में आता है कि नहीं, है ना। हाँ, और गंधर्व चित्त, ये क्या है, हाँ खुद नाचते गाते वो सब ठीक है, आप कभी अकेले में जो रहते हैं ना उन लोगों के ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहिए, जो अकेले ऐसे ही खड़े रहते बैठे रहते या बाथरूम में, ठीक है तो सही है। तो खुद उनका ऐसा वरना ऐसा आवाज आना, तो मुंह से आवाज आना, ये सब गंधर्व चित्त दिखता है। हमेशा कान में वो डालते ना ईयरफोन, वो डाल के सुनते रहना, ये सब गंधर्व चित्तत्व है, ठीक है। और अधृति ही, दृढ़त्व नहीं है, पकड़ नहीं पाते ये लोग, आगे बढ़े भी नहीं पाते। एक बार पकड़ लिया, हाँ अच्छा है ठीक है, उधर ही छोड़ दिए, उस दिन रात ही सब ये हो गया, अधृति ही। और एक डिसीजन लिए तो वो भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। धृति ही, धी धृति स्मृति, धृति धारण शक्ति, ओके। कृतज्ञ, कृतम घ्नन्ति, अगर इनको कोई हेल्प किए, सहायता किए तो ये लोग 1-2 दिन में ही भूल जाएंगे, शायद उसी वक्त भूल जाएंगे। कृतज्ञ कृतम घ्नन्ति। और अव्यवस्थित मति ही, अच्छा इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सब लोग अपने अपने जगह में, अपने अपने बैग में अपना अपना बुक पेन सब डाल के बैठे हैं, ठीक है, व्यवस्था है ये। तो ये इधर बैठा है, उसका बुक उधर रहता है, उसका पेन उधर रहता है कि नहीं। तो कितने लोगों का बुक सब खो गया था, कितने लोगों का बैग खो गया था ओके, अव्यवस्थित मति ही, ये दिख पड़ता है। अंदर ये स्वभाव रहेगा तो ही वो कार्य में आएगा, है कि नहीं। व्यवस्था नहीं है, इनकी जिंदगी सिस्टमेटिक नहीं है, अव्यवस्थित मति ही। और पित्त प्रकृति वालों का देखिए, क्षिप्र कोप प्रसाद, गुस्सा भी जल्दी आता है और कुछ भी जल्दी हो जाता है, तो दोनों एक्सट्रीम्स है ये। तो मेधावी, मेधा शक्ति बहुत है इन लोगों को ना, कुछ भी करे, उन लोगों का इंटेलिजेंस से भी कुछ भी नहीं बोल सकते, इतना इंटेलिजेंट है। और निपुणमति ही, ये स्किलफुल है, मतलब जो भी कुछ सीखते हैं या मन के अंदर घुस गया तो उसको कैसे कैसे शार्प करना है उसके बारे में सोचते वो लोग, निपुणमति ही।
और न भयात प्रणमेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको डरा के कुछ भी काम नहीं हो पाता है। डर के आप अगर उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप ही हार जाएंगे। और अनतेषु अमृदु हो, जो इनके पास सर झुक के काम नहीं कर पाता है उसके साथ ये कठोर रीति से रहेगा। अमृदु हो, अनतेषु विनतेषु, जो इनके साथ विनय रूप से नहीं रहता है उनके साथ ये कठोर रीति से वर्तन करेगा, उनको कभी माफ नहीं करेगा ऐसा। तो प्रणतेषु अपि सांत्वना दान रुचि है, अगर वही इसके आके सर झुक के अगर सॉरी कुछ बोल दिया तो ये फुल पिघल जाता है और जो चाहिए उसको वो दे देता है। तो अनतेषु अमृदुः प्रणतेषु अपि सांत्वना दान रुचि ही। कफ प्रकृति का देखिए, कृतज्ञ है ये, मतलब कृतम, हाँ, जो भी कुछ इनको अगर हेल्प किए तो वो याद में रखेगा, भूलेगा नहीं। और धृतिमान है, वात प्रकृति का फुल अपोजिट। एक बार समझ में आ गया तो वो लोग छोड़ते नहीं, अगर एक बार टांग ले लिए तो वो छोड़ते नहीं। मतलब ये जो बैड हैबिट्स है ना उसमें अच्छा पकड़ में आता है ये सब। सिगरेट लेते रहते हैं, अच्छा उन लोगों को छोड़ने का मन रहता है, एक दिन छोड़ेंगे, नहीं हो पाता है, वो देखते ही इनका चालू हो जाता है। ठीक है, वात प्रकृति वाले वापस जाके शुरू करेंगे। कफ प्रकृति वाले अगर ऐसा कुछ हैबिट उनके मन में आ गया तो भी छोड़ना चाहते हैं, तो एक बार छूट गया तो छूट गया। तो सहिष्णु हूँ, सहन शक्ति बहुत है इनका। क्यों? सही बात है, इसलिए शालिंगने है कि नहीं, चिपक जाता है। तो दुख आया सुख आया तो बीच में रहने वाले, बहुत भूख लग रहा है, नहीं छोड़ रहे हैं, क्लास में नहीं छोड़ रहे हैं, क्लास चल रहा है, अरे बाप रे, पित्त प्रकृति वालों का क्या हालत होगा, वात प्रकृति वालों का क्या हालत होगा, कफ प्रकृति वाले क्या करते रहते, वही बात है। और चिरग्राही, एक सब्जेक्ट को या एक विषय को उनको पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। चिरेण गृह्णाति, और ऐसे इजी से एक्सेप्ट नहीं हो पाते वो लोग, उनके मन में नहीं घुसता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो धृतिमान पकड़ लेते, ठीक है। और संतत गुरुमान कर, सततम गुरुमान कर, ये दो एस्पेक्ट है इधर। गुरुजनों को इनके तरफ से बहुत श्रद्धा रहेगा और मान सम्मान वो लोग करेंगे। और नीचे देखिए, गुरुणाम मानयिता, गुरुजनों से भी इनके प्रति अच्छा ओपिनियन रहेगा, अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडियस है, ऐसा ओपिनियन रहेगा। और सत्वगुणोपपन्न, ये दो प्रकृति में, पहले दो प्रकृति में कोई ऐसा कुछ बात नहीं आया जो रजोगुण बहुल है, तमोगुण बहुल है, मगर इनमें आया सत्वगुणोपपन्न। कफ प्रकृति के बाद काय का एक्सप्लेशन आता है कि नहीं, वो भी सत्व गुण प्रधान वाला है ना। सब लोग नींद कर रहे हैं, अच्छा पूरी भाजी खा के जाग जाइए। और इसलिए इतना गाना सब गाए। अच्छा बोलिए मैडम, हम गंधर्व चित्त नहीं है हमारा। तो सत्वगुणोपपन्न क्लेशक्षम, सहन शक्ति ज़्यादा है, सहिष्णु है, तो दुखों को भी ये सहन शक्ति ज़्यादा है। और दृढ़ शास्त्रमति ही, शास्त्र का ये क्या है, पद विभाग में आप लोग धातु देखे ना, देखिए एटलीस्ट बुक को लिए इधर उधर कीजिए, नींद भाग जाएगा। शास्त्र का ये देखिए, धातु देखिए, हाँ, मतलब दृढ़ शास्त्र मत ही, मतलब सिर्फ शास्त्र मतलब आयुर्वेद ऐसा लेंगे या पुराण शास्त्र ऐसा लेंगे। मतलब जो अनुष्ठान में लाना है, जो रूल्स कॉमनली बना गया है, वो रूल्स को ये तोड़ता नहीं है,
वो फॉलो करता है तो दृढ़ शास्त्र मति ही। और ऑफ कोर्स शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र भी है, ऐसे धर्मशास्त्र है, ऐसे ही जो शासन करने वाला, हमारा जीवन को एक व्यवस्थीकरण करने वाला जो भी कुछ है ना सब्जेक्ट्स, उसमें इनका दिमाग घुसता है, उनमें इच्छा रहता है, ये करेगा, ये जिंदगी भर करेगा ऐसा। और परिगण्य चिरात प्रददाति, अच्छा जब देने की बात आता है सोच के देता है, अगर दिया तो बहुत कुछ, ठीक है। परिगण्य चिरात ददाति, चिरात बहु ददाति, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है इधर। आगे जाइए। सोशल बिहेवियर कैसा रहता है तीनों प्रकृति वालों को, तो अनार्य है वात प्रकृति वाले। क्यों बोलिए, वात प्रकृतियों का पहले से उनका दुर्भग है, ये है कि नहीं। टेम्पर इधर उधर होता जाता है, कभी क्या कहेगा क्या करेगा मालूम नहीं, इमीडिएटली बीच से उठ के जा सकता है, इमीडिएटली बीच में आके बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सोशली इनका सोशल नेटवर्क जो है उसे बोले तो वो उनका थोड़ा ठीक नहीं है, दूर रहेंगे, आभास हो सकता है, इसलिए अनार्य। और क्राथी, क्राथी गुस्सा, अच्छा क्राथी का ये देखिए धातु देखिए, कृतहिंसायाम, अपने तरीके से, अपने बातों से, अपने टोटल अपनापन से दूसरों को हिंसा देता है। क्राथी ये बात में आ गया, बिहेवियर में आ गया, सोचने का तरीका में हो गया, इतना जलसी करेगा, इतना वेरिएशन है टेम्पर में तो होगा ही कि नहीं, तो क्राथी। और अदृढ़ सौहृद, फ्रेंडशिप बदलता रहता है, इस साल फ्रेंडशिप में इसको फ्रेंडशिप बैंड बांधेगा और अगले साल दूसरे और उसको छोड़ देगा। कृतज्ञ, ओके। आगे समितिषु दुर्निवार्य वीर्य, ये पित्त प्रकृतियों का है। वाद विवाद अगर चलता रहता है तो, अगर पित्त प्रकृति वाले वाद विवाद में बैठे तो डिबेट में यही जीतेंगे। इनको उठाइए, इनको उठाइए। अगर प्रकृति में आप इतना सोएंगे तो निद्रा प्रकरण में क्या करते थे आप और कफ प्रकृति का देखिए, दृढ़ वैरह, ये आप लोगों को सब ये जो दिखा है ना, ये सब सिर्फ अक्षर में लिखा है, इसलिए इतना बोर आ रहा है। आगे जाएंगे तो आप सब लोग उठ जाएंगे। तो दृढ़ वैरत्व क्या है देखिए, इन लोगों को अदृढ़ सौहृद है वात प्रकृति वालों को, मगर कफ प्रकृति वालों को स्थिर मित्र धन संचय, नीचे है देखिए, स्थिर मित्र धन है, मतलब फ्रेंड्स अगर बन गए तो जिंदगी भर वही फ्रेंड्स है उनका, मतलब ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर इनको कोई वैरी लोग एनिमी बन गए तो गया उनका, वो हालत गया। दृढ़ वैरः कैसे करेगा, उसके लिए क्या एग्जाम्पल है आनुक में देखेंगे। और उनका स्टेटस देखिए, मतलब सोशल स्टेटस में क्या रहते हैं, मतलब ये सब एक बच्चे में दिखाई देगा ये सब जो भी कुछ है। एलकेजी यूकेजी में जब जाते हैं ना तब मालूम पड़ेगा, रोज एक के साथ झगड़ के आएंगे। कभी कभी है ना इनके बैग में दूसरों का पेंसिल आ जाता है, वो ये आ जाता है, बुक आ जाता है, उनका वो जो बॉक्स रहता है ना वो आ जाता है। ये सब क्या दिखाता है ये बच्चों में ये सब दिख पड़ता है, मगर ये जो स्टेटस है ना, मतलब मंद रत्न धन संचय मित्र, ये सब